Class 9th Mathematics Chapter 7th Triangles, and today we are doing exercise 7.1. The very first question says, in quadrilateral ABCD, AC equals to AD and AB bisects angle A. Show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? Okay, let's see first what we can do here is observe the figure. We have a quadrilateral ABCD or AC BD, we can say properly, in which the side AC is equal to AD and the bisector of angle A, दिस इज योर एंगल A, इसका जो बाइसेक्टर है वो AB है. तो क्या होगा कि जो आपका एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा. और यहाँ पे आपको AB कॉमन भी दिख रहा होगा. तो हम किस तरीके से ट्राइंगल को कन्वर्ट करेंगे? तो हम पहले गिवन लिखते हैं इसमें. व्हाट इज गिवन टू अस? AC equals to AD and AB bisects angle A. It implies that angle 1 equals to angle 2. To prove, what we need to prove here is that the triangle ABC triangle is congruent to triangle ABD. So nothing to do, हम directly यहाँ पे proof start करेंगे अपना. The method of writing is that in triangle ABC and triangle ABD, what is given to us is AC equals to AD, first thing. Then angle 1 equals to angle 2. It is also given to us. ठीक है, दोनों ही हम गिवन में डाल सकते हैं बिकॉज हमने गिवन में भी यहाँ पे यही लिखा हुआ है. एंड फाइनली what we can say that AB in the first triangle equals to AB in the second triangle, that is common side to both the triangles. So by which rule we can say? The rule is side angle side congruence rule. Triangle ABC is congruent to triangle ABD. बहुत इजी है करना, इसको देखना समझना कि जो हमारा AB था कॉमन था, हमें क्या गिवन है, जो AC है वो AD के इक्वल है और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 था. तो ये पूरा ट्राइंगल ऊपर वाला दैट इज ABC और नीचे वाला ट्राइंगल दैट इज ABD आर कॉन्ग्रुएंट. और अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या होता है? बाय CPCT, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तीन पार्ट्स तो हमने लिख लिए हैं कि जो हमें गिवन दे रखे थे इक्वल. बाकी बचे तीन पार्ट्स आपके, है ना, वो सब इक्वल हो जाएंगे. एंगल C इक्वल टू एंगल D होगा, एंगल दिस वन इक्वल टू दैट होगा, और आपका जो ये साइड दिख रही है BC वो किसके इक्वल होगी? BD के. सो बाय CPCT व्हाट वी कैन से दैट BC इक्वल्स टू BD, and that is what we have to show here. That is the very first question of exercise 7.1. In the second question, ABC is a quadrilateral in which AD equals to BC and angle DAB equals to angle CBA. Prove that. You have to prove three parts. पहला पार्ट ही हमें क्या दिख रहा है? ट्राइंगल को कन्वर्ट करना दिख रहा है. तो what are these triangles? See ABD. ABD is this triangle, this portion of the quadrilateral. Clear? And the second triangle is BAC, है ना? This is the triangle. तो आपको इन दो ट्राइंगल्स को, the first triangle was that and the second triangle is this, इन दोनों को आपको कन्वर्ट करना है. The same thing मैं यहाँ से लिखना शुरू करूंगा. इसको गिवन क्या दे रखा है हमें? that AD is equal to BC, the first thing, and angle DAB is equal to angle CBA. हाँ मुकेश. हाँ भैया, मुकेश चलिए. हाँ ठीक है, ठीक है. ठीक है. ओके.
AD इक्वल्स टू BC एंड DAB इक्वल्स टू CBA। ये तो हमने दे ही रखा था, हमने गिवन लिख लिया इसको। टू प्रूव, आप फर्स्ट पार्ट लिख लेंगे इसका कि आपको क्या करना है, ट्राइंगल ABD को ट्राइंगल BAC के सिमिलर करना है। तो हम ना फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहे हैं। आई एम राइटिंग इट फ्रॉम हियर। सी, ये आपकी साइड है द फर्स्ट ट्राइंगल, ये आपका फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल है, और ये आपकी एक और साइड हो गई जो कि दोनों ही ट्राइंगल्स में आएंगी कॉमन। इसी तरीके से सेकंड ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो ये आपकी फर्स्ट साइड है, दैट इज गिवन टू अस इक्वल टू दैट इज द एंगल एंड दैट इज द कॉमन साइड टू बोथ द ट्राइंगल्स। तो बस हमें इसी ऑर्डर में लिखना है, इन ट्राइंगल ABD and triangle BAC, what is given to us that AD is equal to BC given, and angle DAB and angle DAB is equal to angle CBA. The final thing which we need here is the side, that is AB equals to AB in both the triangles, common. So again, by which rule? That is side angle side rule. ठीक है, तो by side angle side congruence rule, congruence rule बोलिए, criterion बोलिए, आपकी मर्जी है, that is same thing, criterion और rule क्या हो जाएगा, triangle ABD will be congruent to triangle BAC, है ना, that is a sign of congruent, इक्वल बनाएंगे और उसके ऊपर हम सिमिलर का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो हमने इतना तो कर लिया है अपना, कि ट्राइंगल को कन्ग्रेंट कर लिया है, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है। अब देखिए जो आपका सेकंड और थर्ड पार्ट है, BD इक्वल्स टू AC, जो आपको ये BD दिख रही है साइड और जो आपको AC साइड दिख रही है, फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल में ये इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ द CPCT रूल। और जो आपको ABD एंगल दिख रहा है, ABD, that is only this portion, the first triangle, this angle, the first triangle, and the second angle is BAC, that is this much portion in the second triangle। आप देख सकते हैं फिगर को, आप सेपरेट कर सकते हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। सो हम डायरेक्टली लिखेंगे बाय CPCT दोनों ही चीजों को, that BD in the first triangle is equal to AC in the second triangle, and angle ABD in the first triangle is equal to angle BAC in the second triangle। और इतना सही हमारा प्रूफ होता है यहाँ पे। तो क्या करना है आप लोगों ने देखना है कि हमें किस ट्राइंगल को कन्ग्रेंट करना है, उस ट्राइंगल पे जाइए, लिखिए इन ट्राइंगल दिस ABD एंड BAC, तीन इक्वल पार्ट्स को आपको देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, एंड यू हैव टू अप्लाई द रूल्स साइड एंगल साइड। वी हैव सम रूल्स हियर, साइड 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 भी होता है, साइड एंगल साइड होता है, एंगल साइड एंगल होता है, एंगल एंगल साइड होता है ना, और ये दोनों चीजें सेम ही हैं। और फाइनली होता है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड द अदर साइड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर व्हिच वन, थर्ड। AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB, show that CD bisects AB। तो यहाँ पे गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन में हमें क्या दे रखा है कि जो फिगर है उसमें AD और BC परपेंडिकुलर्स हैं। AD किसके परपेंडिकुलर है, AB के, देख सकते हैं जो आपका AD है वो AB के क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड द सेकंड थिंग इज जो आपका BC है वो भी AB के परपेंडिकुलर, सॉरी AB, ओके। ऑल्सो जो परपेंडिकुलर्स थे हमारे पास, दैट इज AD, वो किसके इक्वल है, दूसरे परपेंडिकुलर BC के इक्वल है।
ठीक है, टू प्रूव हमें क्या करना है, प्रूफ वी नीड टू प्रूव दैट CD bisects AB. अब इसका मतलब क्या है, जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें एक्चुअली ये प्रूफ करना है दैट OB इज इक्वल टू OA। ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा, OB इक्वल्स टू OA। बहुत इजी है। OB आपका इस ट्रायंगल में फर्स्ट ट्रायंगल कह सकते हैं और ये आपका सेकंड ट्रायंगल कह सकते हैं। तो हम प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल फर्स्ट लिखा जा सकता है एंड ट्रायंगल सेकंड। क्या क्या दे रखा है आपको, तो परपेंडिकुलर तो दे ही रखे थे, इक्वल हैं, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं अपना। इन द फर्स्ट ट्रायंगल दैट इज BC साइड इज इक्वल टू इन द सेकंड ट्रायंगल दैट इज AD साइड, है ना। ये चीज आपको इक्वल दे रखी है फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल में। दूसरा हम इसकी बात कर सकते हैं, एंगल की बात कर सकते हैं कि भाई ये 90 डिग्री का था। कितने का था, 90 डिग्री का। तो एंगल B है एंड यहाँ पे जो एंगल A दिख रहा है सेकंड ट्रायंगल में, वो क्या है आपके इक्वल टू 90 डिग्री है, बिकॉज परपेंडिकुलर दिया था आपको। एक और चीज हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एंगल में अपना वर्टिकली अपोजिट एंगल ले सकते हैं। इसको मैं एंगल फर्स्ट कह रहा हूँ और इसको मैं एंगल 2 कह रहा हूँ। तो एंगल 1 इन द फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू एंगल 2 इन द सेकंड ट्रायंगल। व्हाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो वेरी इजीली यू कैन प्रूफ कि आपका जो ट्रायंगल था कौन सा वाला, फर्स्ट ट्रायंगल, फर्स्ट ही लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। ट्रायंगल फर्स्ट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल सेकंड। आप लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने यहाँ पे फर्स्ट दिखा रखा है ट्रायंगल, आपने यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल दिखा रखा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बाय विच रूल, बाय एंगल एंगल साइड। हम इसको साइड एंगल एंगल नहीं बोलते हैं, हम इसको एंगल एंगल साइड बोलते हैं, दो एंगल्स और एक साइड। ठीक है, तो बाय CPCT क्या हो जाएगा, वेरी इजी, OB in the first triangle will be equal to OA of the second triangle। और हम इसको क्या कह सकते हैं, implies that CD bisects AB। तो ये तीन क्वेश्चंस को आप समझिए, करिए इसको। 8th का कंसेप्ट भी यूज हो रहा है ट्राइंगल्स में, हम जो कन्वेंसी पढ़े थे 8th क्लास में, वो यहाँ पे आप अप्लाई करने वाले हैं।